હવે પછી હું આમંત્રિત કરીશ સ્વામી સુખાનંદજી મહારાજને. સચિવ રામકૃષ્ણ મઠ ભુજ, એમનો વિષય છે સ્વામી વિવેકાનંદ જીવન પ્રસંગ. सबसे पहले आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूं, क्योंकि आपके सभी के हृदय में ईश्वर विद्यमान है. जिन आंखों का हंसना ही क्या, जिन आंखों में पानी न हो, जिन आंखों का हंसना ही क्या, जिन आंखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो. वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो. ये स्वामी विवेकानंद वैसे थे, उनकी कहानी थी, और आप सभी भी वैसे ही बनेंगे. आपका जीवन एक कहानी हो जाएगा. जब हम इस आश्रम में प्रवेश करते हैं, आप सबने अनुभव किया होगा, आपके सब में एक एनर्जी का संचार होगा, क्योंकि यही स्वामी विवेकानंद इस रूम में बहुत दिनों तक रहे थे. और ये इतना पवित्र आश्रम है, आप सबको अनुभव होगा. ये पोरबंदर की भूमि भी पवित्र है. इसको सुदामापुरी कहते हैं. सुदामा यहां से चलकर भगवान कृष्ण को मिलने के लिए गए थे. कुछ नहीं था उनके पास, थोड़ा सा गुजराती में कहे पवा पवा ले गया था. ठीक है, यानी क्यारे मांग्યું नहीं, भगवान कृष्ण પાસે કઈ मांग्યું नहीं. आवा निस्वार्थ सुदामानी पवित्र भूमि है, महात्मा गांधीनी जन्मभूमि है. આપણે બધા ધન્ય છે કે આ પવિત્ર ભૂમિનો સ્પર્શ આપણે કરી શકીએ છીએ. સ્વામી વિવેકાનંદ જ્યારે અમેરિકાથી પાછા આવ્યા, એને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તમે આટલા વર્ષો અમેરિકામાં રહ્યા, અહીંયા આવીને તમને કેવું લાગે છે? સ્વામી વિવેકાનંદે કીધું કે પહેલા હું ભારત ભૂમિને પ્રેમ કરતો હતો, હવે મને ભારત ભૂમિનો પવન, ભારત ભૂમિની પ્રત્યેક રજકણ મારા પાસે પવિત્ર છે. આ ભૂમિ મારા પાસે તીર્થભૂમિ છે, પુણ્યભૂમિ છે. ભારત ભૂમિ એટલી પવિત્ર છે, તમે જ્યારે વિદેશમાં જશો ને અને પાછા આવશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે ભારત ભૂમિ કેટલી પવિત્ર છે. અને આપણા બધાનું ગૌરવ છે કે આપણે આ ભૂમિમાં રહી શક્યા છીએ. 12મી જાન્યુઆરી શ્રી રામકૃષ્ણ દેવે જોયું કે કાશીમાંથી એક દિવ્ય જ્યોતિ આવીને કલકત્તાની ભૂમિ પર પડે છે. શ્રી રામકૃષ્ણ દેવે કહ્યું કે આજે એક મહાપુરુષનો જન્મ થશે કલકત્તામાં. અને એ મહાપુરુષ કોણ હતા? સ્વામી વિવેકાનંદ. તે દિવસે કાશીમાંથી દિવ્ય જ્યોતિ શ્રી રામકૃષ્ણ જોયું. દિવ્ય જ્યોતિ કાશીમાંથી નીકળીને કલકત્તામાં પડે છે. અને જે સ્વામી વિવેકાનંદની મા હતી ભુવનેશ્વરી દેવી, એને ભગવાન શિવની પાસે માનતા રાખી હતી. વીરેશ્વર શિવની પાસે પૂજા કરતા અને પ્રાર્થના કરતા કે મને એક સારો પુત્ર પ્રાપ્ત થાય. અને સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મ પહેલા એને સ્વપ્ન આવ્યું, ભગવાન શિવ સામે દિવ્ય મૂર્તિ વિરાજમાન છે. ધીરે ધીરે ભગવાન શિવ નાના બાળક શિશુમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા અને એના ખોળામાં આવી ગયા. અને પછી સ્વામી વિવેકાનંદનો જન્મ થાય છે. સ્વામી વિવેકાનંદ જે જન્મ થયો ત્યાર પછી ખૂબ ચંચળ, ખૂબ તોફાની હતા. એટલા તોફાન કરતા એની માં કહેતા કે મેં ભગવાન શિવની પાસે પુત્ર માંગ્યો તો મને લાગે છે ભૂતને મોકલાવી દીધું. ઠીક છે, એટલા બધા તોફાન કરતા સ્વામી વિવેકાનંદ. પરંતુ સ્વામી વિવેકાનંદે જે કીધું પોતાના જીવનમાં કર્યું છે. એને કીધું કે બધાની સેવા કરું. જયારે નાનકડા હતા, 6 વર્ષના સ્વામી વિવેકાનંદ, નરેન્દ્રનાથનું નામ હતું, એક મેળામાં ગયા હતા. મેળામાં એનો એક મિત્ર હતો 3 વર્ષનો, કે જે મેળામાંથી જયારે પાછા ફરતા હતા, નરેન્દ્રનાથે એક નાની શિવની મૂર્તિ પણ ખરીદી હતી ને હાથમાં મૂર્તિ હતી. એનો મિત્ર અચાનક રસ્તાની વચ્ચે વહી ગયો. પાછળથી એક ઘોડાગાડી આવતી હતી. એટલા ઝડપથી ઘોડાગાડી આવતી હતી કે બધા રાડું પાડવા માંડ્યા, મરી ગયો છોકરો મરી ગયો. કારણ કે ઘોડાગાડી નીચે જ આવી જવાનો હતો. ત્યારે નરના 6 વર્ષની ઉંમર, તમે વિચાર કરો,
દોડીને એને એના ભાઈબંધનો હાથ પકડીને એવી રીતે ટાણ્યો કે બધા જે જોતા હતા ને બધા કે શાબાશ 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 કરવા માંડ્યા. અને ઘરે આવ્યા છે એની માને કીધું, એની બાએ કીધું, બેટા અવાજ કાર્ય કરતો રહે છે. તો સ્વામી વિવેકાનંદ જે કેતા કરતા, સ્વામી વિવેકાનંદ કીધું બી એન્ડ મેક. પહેલા તમે પોતે સારા બનો, ત્યાર પછી બીજાને બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણે બધા શું કરીએ, બીજાને બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, આપણે જેવા હોય તેવા જ રહી. ઠીક છે. એક છોકરો ઘરે માર્કશીટ લઈને બેઠો હતો, એના પિતાજી આવ્યા. અચ્છા, માર્કશીટ કેટલા માર્ક્સ મળ્યા? ઓ, તને અંગ્રેજીમાં 30 માર્ક. અમે જયારે ભણતા હતા ઇંગ્લિશમાં 80 થી નીચે માર્ક્સ નહોતા. ગણિતમાં કેટલા? ગણિતમાં 20 માર્ક. તારથી કઈ નહીં થાય. અરે અમે ભણતા હતા 90 ની નીચે માર્ક્સ નહોતા આવતા. તો છોકરાએ કીધું, પિતાજી આ માર્કશીટ મારું નથી, આ તમારું જ છે. એના પિતાજી મારવાનું શરૂ કર્યું. મેં તને કેટલી વાર કીધું મારા કાગળને હાથ ન અડાડતો, કેમ હાથ અડાડ્યો? ઠીક છે. તો આપણા બધાનું એવું છે, બીજાને બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ઠીક છે. સ્વામીજી કહે છે, ઇફ યુ થિંક યુ આર ગ્રેટ, યુ બીકમ ગ્રેટ. ઇફ યુ થિંક યુ આર વીક, યુ બીકમ વીક. જો તમે પોતાની મહાન સમજશો, તેજસ્વી સમજશો, તેજસ્વી બની જશો. પોતાને નિર્બળ સમજશો, દુર્બળ સમજશો, આપણે દુર્બળ બની જશો. સ્વામી વિવેકાનંદ, ઈચ સોલ ઇઝ પોટેન્શિયલી ડિવાઇન, જે આર્યનજી મહારાજે થોડાક સમયમાં એટલી સરસ વાત કરી આપણે બધાને કે આપણો કોન્ફિડન્સ કેવી રીતે વધે, આપણો આત્મવિશ્વાસ કેવી રીતે વધે. સ્વામી વિવેકાનંદ ક્યારેય કોઈને નાના સમજતા નહીં. બધો સમયને પ્રયત્ન કર્યો છે કે આપણે બધા, એ જયારે કલકત્તામાં અમેરિકાથી પાછા આવ્યા, કલકત્તામાં લેક્ચર આપ્યું, એને કીધું કે મારા જેવા છોકરાએ આવું કામ કર્યું છે, કોલેજના છોકરાએ, તમે મારાથી પણ વધારે સારું કામ કરી શકશો. તમે વિચાર કરો, આપણા જેવા હોત તો એમ કીધું મેં કર્યું તમારાથી નહીં થાય. સ્વામી વિવેકાનંદ, મેં કર્યું છે એનાથી તમે સારા કાર્ય કરી શકશો. સ્વામી વિવેકાનંદ કહેતા કે આપણે જે વિચારો છે ને, આપણે એને સારી દિશા, સાચી દિશા આપવી જોશે. આપણી પાસે, બધાની પાસે મોબાઈલ છે. ઠીક છે. આ મોબાઈલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો આપણને ખબર હોવી જોઈએ. સારો પણ ઉપયોગ છે, ખરાબ પણ ઉપયોગ છે. ગીતામાં કહે છે, તમે તમારા શત્રુ છો, તમે તમારા મિત્ર છો. આપણે જ પોતાના શત્રુ છીએ, આપણે જ પોતે મિત્ર છીએ. જો આપણે, હમકો સહી દિશા દેની ચાહીએ, અપને આપ કો. હું બંગાળમાં હતો, એક સ્કૂલમાં, યા છોકરા બધા અમારા આશ્રમમાં જ રહેતા. ક્લાસ 6 ના છોકરા, હું હોસ્ટેલનો વોર્ડન હતો. તો એમાં શું થયું, છોકરા બધા ત્યાં જ રહેતા. બધા રવિવારે એના બધા પિતાજી ગાર્જન બધા આવે જ, ખાવાનું લઈ આવે, કોઈ મીઠાઈ લઈ આવે, કોઈ ચવાણું લઈ આવે, બિસ્કીટ લઈ આવે. છોકરા શું થાય, જે એની કબાટમાં રાખ્યું તો બીજા છોકરા આવીને બધું ખાઈ જાય. તો મને આવીને બધા કહે કે મહારાજ, અમારે ખાવાનું બધું ચોરી થઈ જાય છે, બધા બીજા ખાઈ જાય છે. તો મેં કીધું, સાંભળે, કામ કરજે, બધાને તું વેચી ખાસ ને તો ચોરી નહીં થાય, એકલો ખાઈશ તો ચોરી થશે. પરંતુ મારું કોઈ માનતા નહોતા, ચોરી થતી હતી. થોડા દિવસ પછી એક છોકરા આવીને કીધું કે મહારાજ, હવે ચોરી નહીં થાય. કીધું કેમ? પછી અમે એક ચોર પકડવાનું મશીન બનાવ્યું છે. અચ્છા, ચોર પકડવાનું મશીન, કેવું મશીન? ખરેખર છોકરો ખૂબ બુદ્ધિમાન હતો, એક હીટર બનાવ્યું, મને બતાડ્યું હતું, હીટર બનાવ્યું. તો મેં કીધું આ મશીન, પછી મશીનમાંથી મારે એક સુગંધ નીકળે. હું શું કરીશ ખબર છે, ખાવાનું બધું રાખીશ, વચમાં મશીન રાખીશ. હવે જે છોકરો ખાવાનું ચોરી કરશે ને, એના હાથમાં સુગંધ લાગી જશે, અમે હાથ શું ચોર પકડાઈ જશે. મેં વાહ, સરસ, તો ખૂબ બુદ્ધિશાળી તું. થોડા દિવસ પછી પૂછ્યું, ચોર પકડાઈ ગયું? પછી મારે શું કહું, ચોર પકડવાનું મશીન ચોરી થઈ ગઈ. ઠીક છે. તો હું જે કહેવા માંગુ છું કે ચોર પકડવાનું મશીન આવિષ્કાર કરવાની બુદ્ધિ આપણામાં છે, ચોરી કરવાની બુદ્ધિ પણ છે. હવે બુદ્ધિને આપણે સાચી દિશા દેવાની છે. તમે વિચાર કરો, હનુમાનજીમાં શક્તિ હતી, રાવણમાં પણ શક્તિ હતી. ઠીક છે. હું થોડા દિવસ પહેલા એક યોગ શીખડાવે ને ત્યાં ગયો હતો. યોગ બધું સારું, આપણું શરીર સારું થવું જરૂરી છે, પરંતુ શરીર સારું કર્યા પછી આપણે શરીરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશું?
આપણે જો સારા કામમાં ઉપયોગ કરશું તો સારું, હવે બીજાને નડતરૂપ થશું તો એ કઈ શરીર સારા થવાનું કઈ મૂલ્ય નથી. રાવણમાં શક્તિ છે, હનુમાનજીમાં શક્તિ છે. ઠીક છે. હવે તમે વિચાર કરો, રાવણે શક્તિનો કેવી રીતે ઉપયોગ કર્યો અને હનુમાનજી કેવી રીતે કર્યો. રામચરિત માનસમાં એકવાર યુદ્ધ થયું તો રાવણ કે છે हनुमान जी के तुम एक मुक्का मुझे मारो, मैं तुमको एक मुक्का मारूंगा. तो हनुमान जी ने कहा पहले तुम ही मुक्का मारो, क्योंकि बाकी मैं मुक्का मारूंगा तुम्हारा क्या होगा पता नहीं. ठीक है. तो रावण में कहते 20 हाथ जैसी शक्ति थी. ठीक है, 20 हाथ. एक मुक्का हनुमान जी को ऐसा मारा, हनुमान जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे. ठीक है, कुछ नहीं हुआ. अब तो रावण को डर लगा, अब क्या होगा. हनुमान जी जैसे मुक्का उठाया, क्या हुआ, भगवान शिव आ गए, ब्रह्मा, अरे रुको रुको रुको, क्या रावण यही खत्म हो जाएगी. ठीक है ना, तुम जो मुक्का मारोगे तो मर जाएगा. अब हाथ तो उठाया तो मारना तो पड़ेगा. तो भगवान शिव के से तारा टचली आंगड़ी में जेटली शक्ति है ने एटलाथी मारजे, वधारे न मारतो. हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, बेभान हो गया. ठीक है ना, बेहोश हो गया. तो बाद में जो होश में आया ना, रावण का बहुत शक्ति है, हनुमान जी का शक्ति तो दिखाई नहीं. ठीक है. तो हमको सबको शक्ति दी है भगवान ने, उस शक्ति का हम कैसे उपयोग करेंगे. स्वामी विवेकानंद के वो अलोन इज अलाइव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव. वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है, बाकी सब मुर्दे के समान है. एक छोटी सी कहानी है. देखिए, राक्षस किसको कहते हैं. राक्षस इसको कहते हैं जो दूसरे का दुख देखकर ना उसको आनंद होता है, और दूसरों को सुखी देखकर जलन होती है. ठीक है, बहुत देखा हमें भी कुछ कुछ राक्षस ऐसे है. ठीक है ना, किसी को सुख में देखने अपने को जलन होती है. ठीक है ना, और दुखी देखने सुखी होते हैं. ठीक है ना, इसको राक्षस कहते हैं. देवता किसको कहते हैं, किसी को सुखी देखने में सुख होता है और दुख देखने में उसको दुख होता है. तो क्या हुआ, सब देवता लोग तो बहुत मजे में रहते हैं, राक्षस लोग को बहुत कष्ट में रहते. तो एक बार राक्षस लोग सब ब्रह्मा के पास गए कि देखिए आप लोगों ने हमको बनाया, लेकिन हम तो दुख में ही जीते, कोई सुख है ही नहीं. तो ब्रह्मा ने कहा देखो मैं सबको कुछ कुछ मौका देता हूं, आप इस मौका का कैसे उपयोग करती है आपके ऊपर है. आप अच्छी से उपयोग करेंगे तो आपको आनंद होगा. बस ठीक है, मौका दीजिए. तो ब्रह्मा ने क्या किया, सब राक्षस को बुलाया खाने के लिए. ठीक है ना. अभी घर में घुसने से पहले क्या करना है, सबका हाथ है ना वो यहाँ कोनी से लकड़ी से बांध दे, सीधा हाथ, कोई हाथ को बेंड नहीं कर सकते, सीधा हाथ. और बहुत अच्छा अच्छा खाना. अब वो अंदर घुसे देखे अच्छा अच्छा खाना, हाथ सीधा है, वो ऐसे ऐसे घूम रहे. ऐसे घूमते घूमते ना किसी को हाथ लग गया, जैसे लग गया ना सब मारपीट शुरू हो गई. ठीक है, वो इसको मारने लगा, ये मारने लगा. खाना तो सब वहीं बस नष्ट हो गया. सब गाली देने लगे ब्रह्मा को, और ऐसे कोई खिलाते कि हाथ बांध कर खिलाना, सब चले गए. अब देवता ने क्या, अब ब्रह्मा ने क्या कि देवता को बुलाया, वही शर्त, दोनों हाथ सीधा बांधे खाओ. देवता ने क्या किया मालूम है, आमने सामने बैठ गए, उसने सीधे हाथ से दूसरे को खिला दिया, सबका खाना हो गया. देखिए, तो हम जब किसी का भला करते ना हमारा भला होता है, और किसी का बुरा करते ना हमारा बुरा होता है. अब मैं एक कहानी कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा. एक लड़का मेला देखने के लिए गया था. आपने जो 7મ 8મ मेड़ो हो मेला देखने गया था, और बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी, वो भी मेला देखने गई थी. अब बूढ़ी मेला देखते देखते कहने लगी कि मेरा लड़का खो गया. तो सबने कहा लड़का खोया, अच्छा ठीक है, तुमको कहाँ ये मेले में तो इतनी भीड़ है, कहाँ लड़का तुमको मिलेगा. एक काम करते हैं, तुमको अनाउंसमेंट की जगह पे ले जाते हैं, और वहां तुम बोलोगी तो लड़का मिल जाएगा. अनाउंसमेंट की जगह पर ले गए बूढ़ी को. बुढ़ी को पूछा गया कि तुम्हारा लड़का का नाम क्या है. तो बुढ़ी ने कहा मुझे मेरा लड़का का नाम पता नहीं, लेकिन मेरा लड़का बहुत अच्छा है. नाम पता है, अच्छा तुम बताओ तो तुम्हारे लड़के की उम्र कितनी है. तो बुढ़ी ने कहा कि मेरा लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन उम्र कितनी पता नहीं. अच्छा तुम बताओ तो तुम्हारे लड़के ने कैसे कपड़ा पहना है.
तो बूढ़ी ने कहा मेरा लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन कैसा कपड़ा पहना अच्छा है मुझे पता नहीं। सबने सोचा बूढ़ी का दिमाग खराब हो गया, लड़का खो गया, उसका नाम पता नहीं, उम्र पता नहीं, तो अच्छा मेरा लड़का बहुत अच्छा है। तो किसी ने डॉक्टर के पास ले गया, ये अच्छा है, ये तुम्हारा लड़का है। वो डॉक्टर वैसे तो बहुत रुपया लेता था सबके पास, अच्छा डॉक्टर था, लेकिन उसकी फीस बहुत थी। ये तुम्हारा लड़का, ये लड़का नहीं। एक टीचर के पास ले गए, बहुत ट्यूशन करता था, पढ़ाता था, अच्छा पढ़ाता था, ये तुम्हारा लड़का, ये मेरा लड़का नहीं। एक सिंगर के पास ले गए, बहुत अच्छा गाना, उसका गाना सुन हजारों लोग आते थे, लेकिन गाना गाने के लिए लाखों रुपया लेता था। ये लड़का, ये भी मेरा लड़का। एक छोटा सा बच्चा 15-16 साल का, उसको देखकर बूढ़ी ने कहा ये मेरा बच्चा है। कैसे पता चला? वो लड़का जब स्कूल में जाता था अपनी माँ को कहता माँ मुझे बहुत भूख लगती है, ज्यादा खाना देना मुझे, नाश्ता। वो लड़का कभी नाश्ता खाता नहीं था। वो देखता था जो गरीब लड़के नाश्ता लेकर नहीं आते थे सबको बांट देता था। रोज आके माँ को कहता मेरी किताब खो गई, कभी किताब खो नहीं जाती थी। जो लड़का किताब लेके नहीं आता था ना सबको वो किताब दे देता था। ठंडी के सीजन में रोज आके कहता था मेरा स्वेटर खो गया, स्वेटर खो नहीं जाता था। वो देखता था कौन गरीब लड़का स्वेटर पहन के नहीं आया, उसको दे देता। ये बूढ़ी कौन है पता है? आप सबको पता है। ये बुढ़ी का नाम है भारत माता। ये भारत माता आज भी ऐसे सपूत को ढूंढ रही है जो दूसरे के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दे। स्वामी विवेकानंद चाहते थे हम भी वैसे युवा बने जो दूसरों के लिए जिए। એ જ ખરેખર જીવે છે, બીજાને માટે જીવે છે। નમસ્કાર, ધન્યવાદ। હવે હું આમંત્રિત કરીશ પૂજનીય સ્વામી ગુણાશ્રયનજી મહારાજ, સચિવ રામકૃષ્ણ મિશન લીમડી। એમનો વિષય છે સ્વામી વિવેકાનંદનું યુવાનોને આહ્વાન। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। मंच पर उपस्थित सन्यासी वृंद तेमज विद्यार्थी युवा भाइयों और बहनों, आनी पहला आपणे 3-4 वक्ताओने सांभळ्या। कई ने कई प्रेरणादायी वार्ता द्वारा अमुक एवी घटनाओं जे हमणा बनी गई, जेम कौशिक भाई कह्युं तेम एवी पण एक घटना अमारे લીમડી में पण बनी गई। ए पण एक दीकरी ज हती અને જે દિવસે એમને બોલવાનો વારો હતો એ જ દિવસે બીમાર પડી ગઈ અને એને સંસ્કૃતનો ફકરો આપવામાં આવેલો હતો। એટલે એમના પિતાજીએ ફોન કર્યો કે મારી દીકરીને તાવ આવ્યો છે અને બોલી શકવાની શક્તિ એનામાં નથી। જ્યારે બીજે દિવસે એમની દીકરીએ કહ્યું કે આજે મને સારું છે પપ્પા, મને મિશનમાં લઈ જાઓ અને હું બોલીશ। એમના પપ્પાએ કીધું ના દીકરી, આપણે રિસ્ક નથી લેવું, તબિયત હજી તારી સારી નથી। પણ એને હઠ લીધી અને એ હઠની સામે એમના માતા પિતા નમ્ર બન્યા અને એમને લાવ્યા। અને એ જે દીકરીએ બોલ્યું છે, જેમ કૌશિકભાઈ કીધું, અમને પણ આશ્ચર્ય થઈ ગયું। કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે, એક વેસ્ટર્ન ડિસાઇપલને સ્વામી વિવેકાનંદે કહેલું કે વન ડે ઇટ વિલ કમ, એક દિવસ એ આવવાનો છે અને જરૂર આવશે કે આ એક શરીર જે મારું શરીર છે એક દિવસ જૂના વસ્ત્રોની માફક જીર્ણ શીર્ણ થઈ
અને એનું પતન થશે. I shall shake off this body like a old garments, but I will not cease to inspire. હું ત્યાં સુધી પ્રેરણા આપતો રહીશ જ્યાં સુધી આ આખું જગત એકમેક ન થઈ જાય. સ્વામી વિવેકાનંદજીએ આ એક પેરેનિયલ અપીલ આપી અને એ અપીલ માંથી ન જાણે કેટલા કેટલા મહાનુભાવોએ પ્રેરણા લીધી છે. એમાં સુભાષચંદ્ર બોઝ છે અને ઘણા બધા એવા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ સ્વામી વિવેકાનંદના વાંચનો અને લેખનોમાંથી પ્રેરણા લઈ અને આપણને આ ભારત દેશને ગુલામીમાંથી આપણને સ્વતંત્ર કરાવ્યા. તો સ્વામી વિવેકાનંદ અત્યારે પણ પ્રેરણા આપે છે. કહેતે થે, આઈ એમ વોઇસ વિધાઉટ ફોર્મ. હું યુવાનોમાં, લોકોમાં, વચ્ચેમાં પ્રેરણા દેતો રહીશ, કામ કરતો રહીશ. આપણે પોતાના શિલ્પી બની શકીએ. એમ કહેવાય છે ને કે જો ભગવાન બનવું હોય તો હથોડા ખાવા પડે. એક પથ્થરને કેટલી બધી સમસ્યાઓમાંથી, જેને કહીએ, પસાર થવું પડતું હોય છે. એક પથ્થર ઉપર હથોડા અને ટાંકણાથી એમ કરતા કરતા પછી જયારે એનું રૂપ ધારણ કરે છે તેમાંથી એક મૂર્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો સ્વામીજીની પ્રેરણાદાયી વાણી દ્વારા આપણે એ સમજી શકીએ કે આપણે આપણા પોતાના જ ભાગ્ય વિધાતા છીએ. આપણે શું ન કરી શકીએ એની પ્રેરણા આપણે જો સ્વામી વિવેકાનંદના વાંચનો વાંચશું, એમના જે કઈ સાહિત્ય છે વાંચશું તો આપણે જરૂર પ્રેરણા મળશે. જેમ આર્યાનંદજી મહારાજે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ બહુ સરસ વાત કરી છે, બીજા સ્વામીજીઓએ પણ સરસ વાત કરી છે. એમાંથી તમે કંઈક પ્રેરણા લો અને તમે જે કંઈ તમારા જીવનમાં ધ્યેય નક્કી કર્યું, કંઈક ને કંઈક ધ્યેય તો તમે નક્કી કર્યું જ હશે કે મારે ડોક્ટર બનવું છે, કે મારે એન્જિનિયર બનવું છે, કે મારે ગમે તે એક ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવું છે અને એ લઈને તમે આગળ વધતા હશો. સ્વામી વિવેકાનંદ તો કહેતા, એક વિચારને પકડો, એના ઉપર ધ્યાન કરો અને એના ઉપર જ તમે સક્સેસ થશો. એક જ વિચાર ઉપર ધ્યાન. આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણો લઈ શકીએ અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દ્રોણાચાર્યએ જયારે કૌરવો અને પાંડવોને શસ્ત્ર વિદ્યા શીખવાડવાની બાદ એની જયારે તાલીમ પૂરી થઈ એટલે દ્રોણાચાર્યએ નક્કી કર્યું કે આજે હું એમની પરીક્ષા લઈશ. પહેલેથી તૈયારી કરી ચૂકેલા દ્રોણાચાર્યએ એક પક્ષી, લાકડાનું પક્ષી એક ઝાડ ઉપર પહેલેથી જ રાખી દીધેલું અને પરીક્ષા શરૂ થઈ. ભીમને પૂછવામાં આવ્યું, સામે શું દેખાય છે? ભીમ કહે છે, સામે મોટા મોટા પહાડ દેખાય છે. ગુરુદેવ આજ્ઞા કરો તો બધું ધ્વંસ કરી દઉં. દ્રોણાચાર્ય કહે છે, બેસી જા. એમ કરતા કરતા બધાનો વારો આવ્યો, પણ બધાએ કઈ ને કઈ એવો ઉત્તર આપ્યો. અર્જુનનો વારો આવ્યો. અર્જુનને કહેવામાં આવ્યું, અર્જુન સામે શું દેખાય છે? અર્જુને એટલું જ કીધું, સ્વામી ગુરુદેવ, પક્ષીની આંખ, ભલે વિંધો. તો લક્ષ્ય આપણું જો ઠીક હશે તો આપણે જરૂર એ લક્ષ્યની પ્રાપ્ત કરશું. સ્વામી વિવેકાનંદ કહ્યું છે ને કે જીવનની અંદર જે કંઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે એના ઉપર આપણે વધુ ને વધુ, અને એ જ આપણો એક જ વિચાર હોવો જોઈએ, તો જ આપણે ધ્યેયને પહોંચી શકીએ.
સ્વામી વિવેકાનંદની વાણીમાંથી આપણને સૌને હજી પણ પ્રેરણા મળે છે. મારી પણ એક અપીલ છે તમને બધાને, થોડો સમય, આપણી પાસે 24 કલાક છે, 24 કલાકમાંથી થોડો સમય એવો આપો જેનાથી સ્વામી વિવેકાનંદની વાણીમાંથી આપણને કંઈક પ્રેરણા મળે, આપણું એક જીવન ઘડતર થાય. સુખાનંદજી મહારાજે એક બહુ સરસ વાત કરી, જે હું તમને કહેવાનો હતો, કે જે લોકો બીજાને માટે જીવે છે એ જ ખરી રીતે જીવે છે. અને તમે એક વખત અનુભવ પણ કરી લેજો કે જેમ કહ્યું એક વાર્તા દ્વારા કે બંને હાથ બાંધી દીધા, પણ એ જ હાથ એકબીજાએ પોતાને કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કર્યો બુદ્ધિનો, એ દ્વારા આપણે પણ જો બીજાના માટે પણ કંઈક કાર્ય કરી શકીએ તો એ આપણા આત્માના મોક્ષાર્થને માટે જ છે. અને આ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હવે હું આમંત્રિત કરીશ પરમ પૂજનીય સ્વામી પ્રભુ સેવાનંદજી મહારાજ, અધ્યક્ષ રામકૃષ્ણ મઠ અમદાવાદ. એમનો વિષય છે આધુનિક યુવાનોને સ્વામી વિવેકાનંદનો સંદેશ. ઓમ સહનાવવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહે તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. છેલ્લામાં મારું છે, બધા થાકી ગયા તો મારી સાથે એક ઘોષણા કરો. સ્વામી વિવેકાનંદની. લાગતું નથી યુવા છો બધા? જોરથી. સ્વામી વિવેકાનંદની. स्वामी विवेकानंद जी. धन्यवाद. यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी जिस रूम में रहे थे वो रूम अभी तक देखी नहीं? थोड़ा हाथ ऊपर करो. ठीक है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस कार्यक्रम के बाद हमारे इस आश्रम के सचिव स्वामी आत्मदीपानंद जी महाराज ने बताया कि वो दर्शन करवाएंगे. जरूर उस रूम में जाना. स्वामी विवेकानंद जी का फोटो वहां लगा है, वो रूम ऐसी की वैसी रखी है. स्वामी विवेकानंद जी जिस पाट के ऊपर लकड़ी का पट्टा है उसके ऊपर बैठे थे, उस पट्टा भी वहां रखा है, उसका दर्शन कीजिए, आपको एक नया प्रेरणा मिलेगी. जो फ्रेंच रोमांस एक ये थे, मनीषी थे, रोमारोला, उन्होंने कहा था वो देश धन्य है जिस देश में स्वामी विवेकानंद जन्मे थे, और वो लोग धन्य है उस समय इस पृथ्वी के ऊपर थे, और उससे भी ज्यादा धन्य है जो स्वामी विवेकानंद जी के पदतलों में बैठकर उन्होंने उनको सुना था. और मैं कहता हूं ये पोरबंदर के युवाओं, पोरबंदर के नागरिक उससे भी ज्यादा धन्य है जहां स्वामी विवेकानंद 4.5 महीने रुके थे. कितने भाग्यशाली हम लोग. स्वामी विवेकानंद पिकनिक के लिए नहीं आए थे, उन्होंने देश का भ्रमण किया था मातृभूमि की उद्धार करने के लिए. और वो 3 दिन 4 दिन के ऊपर कहीं नहीं रुकते थे. लेकिन ये सुदामा की नगरी, इस नगरी में स्वामी विवेकानंद जी को मोहित किया, उसका कारण था यहाँ की शंकर पांडुरंग पंडित की बहुत बड़ी लाइब्रेरी. जो भी शिकागो में उन्होंने बॉम्ब फोड़े थे उसका पूरा मसाला उनको यहां से मिला था. उस लाइब्रेरी के कारण स्वामी विवेकानंद यहाँ रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया था. कितनी प्रकार की लीलाएं उनकी इस भूमि में हुई है. ये सुदामा नगरी है, जैसे आर्यानंद जी महाराज ने कहा कि गांधी जी का जन्मस्थान स्वामी विवेकानंद जी के चरणों से पावन हुई ये धरती है, ये भूमि है. हम कितने भाग्यशाली है. अभी आर्यानंद जी महाराज ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया, स्वामी विवेकानंद हमारे रोल मॉडल होना चाहिए. मैं कहता हूं क्यों स्वामी विवेकानंद अकेले? आज कई क्षेत्र के लोग हमें मिलते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हो, प्ले खेलने वाले हो, कई प्रकार के
कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है। 2 दिन पहले की एक कहानी कहता हूं। एक जो गुजरात चला रहे हैं उनकी बात मैं आपको कहता हूं। वो उनके अभी मन में ऐसी इच्छा है कि स्वामी विवेकानंद जिस जिस जगह पे रुके थे गुजरात में, वहां कुछ तो होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो जब उन्होंने हमको ये इच्छा बताई तो मैंने उनको कहा कि आपके हाथ से स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, आपका नाम सुवर्ण अक्षर में लिखा जाएगा ऐसा यदि होगा तो। उन्होंने कहा, स्वामी जी आज मैं हूं विवेकानंद जी के कारण हूं। मेरे श्रद्धा स्थान स्वामी विवेकानंद जी है, उनके विचारों से मैं बड़ा हुआ हूं। चाहे राजकारण हो, खेल हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, कई प्रकार के क्षेत्र हो, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श लेकर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। जैसे अभी गुणाशरण जी महाराज ने कहा कि आज भी स्वामी विवेकानंद जी की वाणी सूक्ष्म रूप से काम कर रही है, कई लोगों को प्रेरणा दे रही है। जैसे आर्यानंद जी महाराज ने कहा था कि हमारा फेथ इन योर सेल्फ, हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, फेथ इन योर सेल्फ। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महात्मा थे, उन्होंने विदेश के भूमि पर जाकर एक घोषणा की कि पापी कहना यही सबसे बड़ा पाप है। और वो कहते थे, मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे वेद उपनिषद कह रहे हैं कि हमारे अंदर अनंत शक्ति है, मैं परमात्मा का अंश हूं। शुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अरे तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर की संतान हो, पापी कहना यही सबसे बड़ा पाप है। कभी मत कहो कि मैं पापी हूं, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति भरी हुई है। और वो कहीं खाली कहे नहीं, जैसे अभी कहा कि शी वॉज वॉइस विदाउट फॉर्म, वो खुद कहा करते थे मैं अशरीरी वाणी हूं, मैं जाने के बाद भी मेरी वाणी काम करती रहेगी और आज भी करती रही है। अभी आपने 2 घटनाएं आपने सुनी, एक लिमडी की और राजकोट की। मैं और एक घटना आपको बताता हूं कि कैसी स्वामी जी की वाणी आज भी काम कर रही है। सत्य घटना है। हमारे लिमडी में एक मंदिर है, उस मंदिर के उद्घाटन समारोह में ऐसा ही युवा शिविर का आयोजन किया था। उस युवा शिविर में एक इनकम टैक्स के डेप्यूटी कमिश्नर मुंबई के वी सत्यनारायण राजू, वो भी आए थे। उन्होंने युवाओं को उनके जीवन की जो प्रेरणादायी घटना कही थी, उनके शब्दों में ही मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि आप लोग मुझे देख रहे हैं इनकम टैक्स का ज्वाइंट कमिश्नर मुंबई का, लेकिन मैं जो कुछ हूं स्वामी विवेकानंद जी के कारण हूं। और उनके शब्द है, उन्होंने कहा मैं 9 साल तक अप टू 9th ईयर उन्होंने स्कूल क्या है देखा नहीं था, क्योंकि उनका जन्म ऐसी जगह पे हुआ था, पिछड़े जमात जिसको कहते हैं हम लोग, आदिवासी एरिया में हुआ था। वो स्कूल नहीं गए थे 9 साल तक। जब 9 साल के बाद उनको स्कूल में दाखिल किया गया, वो पढ़ते पढ़ते 10वीं तक गए और 10वीं में फेल होकर वापस घर में आए। तो घर के लोग क्या उनका स्वागत करेंगे? अरे बुद्धू है, नापास हो गया। तो उनको जो कॉन्फिडेंस था वो भी लूज हो गया। फिर किसी ने कहा कि और एक बार ट्राई करो, फिर गए, अपियर हो गए, फिर फेल हो गए। 3 बार 10वीं में फेल हो गए। तो उन्होंने जब फेल होके आए तो सब लोग यही बोले, तुमको कोई आता नहीं, तुम्हारे कपाल में पढ़ाई नहीं है, छोड़ दो। छोड़ दिया। और एक गैरेज में क्लीनर का काम करते थे, जब गाड़ी आती है उनको साफ सुफ करना, यही काम करते थे। तो एक दिन एक बड़ा सेठ जी अपनी गाड़ी लेकर उस गैरेज में आया था। उन्होंने देखा एक लड़का बात करने में एकदम बढ़िया बात करता है, उसके अंदर कुछ एक शक्ति है, इतना स्मार्ट है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हो? तो कहा कि सर मैं 10th तक कैसे ऐसे गया था, 3 बार फेल हुआ तो सब लोग मुझे गाली देने लगे, मैंने छोड़ दिया। अच्छा चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें एक मैं अच्छी जगह पे ले जाता हूं। तो उनको एक जगह पे लेके गए और जो वहां जो दिव्य पुरुष था, उन्होंने कहा बेटा
तुम आगे पढ़ो। नहीं सर, मैं कितनी बार कोशिश की, 3 बार फेल हो गया, सब मुझे रिश्तेदार मेरे घर के लोग कह रहे हैं तुम्हारे कपाल में सीखना लिखना पढ़ना नहीं है, मैंने छोड़ दिया। नहीं, तुम्हें एक मंत्र देता हूं। उन्होंने एक छोटी सी चोपड़ी, छोटी सी किताब उनको दी, स्वामी विवेकानंद जी के सुविचार, अग्नि मंत्र। बोले इसको पढ़ो, जब जब तुम्हें निराशा आएगी इसको पढ़ो और देखो उसका चमत्कार क्या होगा। उन्होंने किताब ली, उनको नमस्कार किया, वापस आए, पहला ही पन्ना खोला, पहला ही सेंटेंस था, फेल्यूर्स आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ये अपयश भी क्या है, जीवन को बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने वाली एक चाबी जैसा है। उनको लगा जब जब मैं फेल होके आया तो घर के लोग मुझे गाली देते थे, ऐसा कौन महापुरुष है जो कह रहा है कि अपयश भी आगे बढ़ाने के लिए एक प्रगति है, स्टेप है। देखा तो स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने फिर से 10वीं में परीक्षा दी, पास हो गए, आगे करते करते एमए पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर से उस आदमी को मिलने के लिए गए, सर आपके आशीर्वाद से मैं एमए तक पढ़ाई किया। तो बेटा बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद नहीं, तुमको जो किताब दी है ना वही वाणी तुमको प्रेरणा दे रही है, विश्वास रखो उनके ऊपर। आगे एक काम करो, जो इंडिया की टफेस्ट एग्जाम है जिसको हम लोग आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें तुम अब बैठो। सर मुझे तो हिंदी कैसी तो आती है, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती है, मैं कैसा कैसा पास फेल होते होते यहां तक पहुंचा हूं, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बोलता हूं तुम बैठो। उन्होंने उनका कहना मान लिया, आईएएस के एग्जाम बैठे, 3rd अटेम्प्ट में पास हो गए। तो इंटरव्यू के लिए गए थे, मौखिक के लिए गए थे। तो जिस जगह पे मौखिक था, इंटरव्यू था, वहां पे 3 कैंडिडेट बैठे थे। तो वहां जो पट्टा वाला होता है वो आया, अच्छा आप लोग आईएएस की इंटरव्यू देने के लिए आए, आप लोग जानते हैं कौन इंटरव्यू ले रहा है? नहीं जानते नहीं। तो उन्होंने जिस मैडम का नाम बताया, उनके इंटरव्यू में कोई पास नहीं होता था, बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो बाकी 2 लोग तो एकदम डर गए। इन्होंने कहा कि मैं भी इतना डर गया, पूरा पसीना आ गया। तो बाथरूम में गए, थोड़ा फ्रेश हो गए, फिर मन में विचार आया, मेरे पास तो मेरा मंत्र है, किताब निकाला, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, स्वामी विवेकानंद सुविचार। सामर्थ्य ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु। तो वो कहने लगे मेरे अंदर एक नया शक्ति का संचार हो गया। अरे मैं क्या किसी का मर्डर किया, मैं पापी हूं, मैं क्यों डरूं? मेरे तो आदर्श स्वामी विवेकानंद है जो कहते हैं दुर्बलता मृत्यु जैसी है। वो गए इंटरव्यू में, मैडम ने जितने प्रश्न पूछे एक का भी उत्तर नहीं दिया, एक का भी उत्तर नहीं आया। फिर सब हो गया, मैडम को पूछा, मैडम आपके क्वेश्चंस हो गए? हाँ हो गया। अभी मैं बताता हूं, मैं जिस पोस्ट के लिए जाना चाहता हूं उसको गोल गोल उत्तर देने से कोई फायदा नहीं। अभी मेरी कंसेप्ट क्या है आपके क्वेश्चन के अनुसार वो मैं बताता हूं। और उन्होंने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया, मैडम क्या है कि ऐसे ही युवक हमको चाहिए, और उनको सिलेक्शन कर दिया। तो वो कहते हैं ये स्वामी विवेकानंद जी के वाणी का, उनके सुविचार का परिणाम, विचारों का परिणाम, उसके कारण मैं आज एक इनकम टैक्स कमिश्नर करके हूं। तो आज भी स्वामी विवेकानंद जी की वाणी आज युवाओं को प्रेरणा दे रही है। तो मैंने कहा कि वाई ओनली स्वामी विवेकानंद, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को ठीक ठीक जाना था, बीमारी क्या है युवकों की वो ठीक ठीक जानी थी। एक छोटी सी कहानी है, एक लड़का था, बहुत होशियार लड़का था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसको एक बीमारी थी। उसके हाथ में कोई कागज देंगे ना, वो कागज के टुकड़े टुकड़े कर देता था। बाकी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके सामने कागज आ गया बस उसका टुकड़ा कर देगा। तो कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स उसके हाथ में गए, उसके टुकड़े कर दिए। नोट दे दिया, नोट को भी फाड़ के फेंक दिया। घर के लोग परेशान हो गए। उसको कितने डॉक्टरों के पास लेके गए, एमआरआई किया, स्कैन किया, ये किया, दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, कुछ लाभ नहीं। एक ही बीमारी, कागज सामने आया, फाड़ दिया। तो किसी ने कहा, अरे अपने गांव के पास एक नया डॉक्टर आया है, उसने दवाखाना डाला है, उसके पास लेके चलो।
अरे घर के लोग बोले कितना प्रकार का इतना फाइल बन गई है, कुछ फायदा नहीं है, क्या करें समझते नहीं है कि लड़कियों को एक ही बीमारी कागज को फाड़ देता है। तो लोग बोलने लगे, इसलिए लेके गए। उस डॉक्टर ने सुन लिया उनकी माताजी पिताजी का, उनको कहा कि आप थोड़ा बाहर बैठिए, उससे मेरी बात करनी है। उस लड़के को लेके डॉक्टर ने ग्राउंड में जाकर दोनों गले में हाथ डाल के, जैसे मित्र होते हैं ना, मित्र जैसे दोनों 2-3 राउंड लगा के फिर उनके पिताजी के पास आए। कहने लगे आपका लड़का एकदम ठीक हो गया, अभी उसकी बीमारी चली गई है, उसको लेके जाइए। ये पेरेंट्स कहने लगे अरे क्या डॉक्टर है क्या है, ना कोई तपास नहीं किया, कोई मेडिसिन दिया, कुछ नहीं, और बोल रहे तुम्हारे लड़के की बीमारी चली गई। अच्छा, वो लेके आए, घर में आए, उसके पास कागज दिया, उसने मुंह घुमा दिया, फिर पूरा कागज का इतना बंडल दिया, कुछ नहीं किया। उनको आश्चर्य लगा कि क्या चमत्कार हो गया, बिना दवाई का, बिना तपास नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसका लड़का ठीक हो गया। वो डॉक्टर को मिलने गए, सर आपने क्या चमत्कार किया? तो उन्होंने कहा आपके लड़के की फाइल मैंने देखी, कितने प्रकार के ड्रग्स उसको दिए हैं, कितने प्रकार की उसको नहीं देना चाहिए वो दवाई दी है, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसको ये नहीं बोला कि बेटा ये कागज फाड़ना बहुत खराब आदत है, उसको छोड़ दो। किसने नहीं कहा? मैंने वही किया। मैंने उसको कहा कि कागज फाड़ना गंदी आदत है, उसको छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने यही बीमारी जानी थी कि क्या बीमारी है हमारे युवकों के अंदर, उसका अचूक निदान उन्होंने किया था, और वही उपाय उनके वाणी के द्वारा दिया है। जो भी उनकी वाणी को सुनेगा पढ़ेगा, उसका निश्चित तौर पर कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यही महान विभूति इस पोरबंदर के धरती पर पधारी थी। हम सबका इतना भाग्य है कि हम लोग उनके वाणी को जीवन में उतारकर हमारा जीवन धन्य कर सके। मैं उनके चरणों में यही प्रार्थना करूंगा, आप लोग यहाँ आइए, उनकी वाणी को पढ़िए, उनके कमरे में जाकर ध्यान करिए। आप सब लोग उच्च आदर्श लेकर उच्च बने, अपने देश को महान बने और एक अच्छा नागरिक कर अपना देश का नाम उजागर करे। यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सत्र આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ।